So now that we have understood that the solution of a pair of linear equations, solution of a pair of linear equations is the point of intersection, is the point of intersection of two graphs और टू स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स. आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, सो दो स्ट्रेट लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द solution of a pair of linear equations. So अब there are three different cases of solutions. There are three different cases. So देखिए, if you have two lines, एक ग्राफ लिया तो if you have two lines, मान लीजिए एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है. So if you have two lines, they can be intersecting lines. So two lines can be intersecting. So this is case one. दो lines intersecting हो सकते हैं. If two lines are intersecting, you have one point of intersection. One point of intersection, right? इसका मतलब है one solution. You have only one solution to this pair of linear equations. But ऐसा जरूरत नहीं कि हर बार एक solution आना ही चाहिए. For example, if you take another case where the two lines are parallel to each other, हो सकता है ना, मान लीजिए फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का ग्राफ और सेकंड लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आप ड्रा कर चुके हैं. सो दोनों लाइंस पैरेलल हो गया. इसका मतलब कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा? So second case is parallel lines. That is no point of intersection. No point of intersection. There are no points of intersection. इसका मतलब है no solution. So if you have two linear equations such that both the graphs are parallel to each other, that means there is no common point. That means there is no solution to these simultaneous equations. अब तीसरा केस है, अब एक और केस हो सकता है जिसमें एक लाइन ऐसा है, the graph of the first equation is like this, the graph of the second equation is also the same thing. मान लीजिए two graphs are coinciding. So coincident lines or overlapping lines. If two lines are overlapping, then how many common points are there? Infinite common points, right? सारा points common ही है ना. So you have infinite common points. That means you have infinite solutions. समझ में आ रहे? So if you take a pair of linear equations, they can have one solution, unique solution. One solution is also called unique solution. Unique का मतलब है ये कि they can have no solution. They can also have infinite number of solutions. ठीक है? So अगर दो pair of equations का unique solution और infinite solutions है तो first case and third case है तो those equations are called consistent equations. नाम है, नया term है consistent equations. So if two linear equations have either one common solution or infinite common solutions, we call that cases as, those cases as consistent equations. अगर दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं है उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. वी कॉल देम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस.
सो दो लीनियर इक्वेशंस कब कंसिस्टेंट होता है? अगर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो कंसिस्टेंट है, या एक के ऊपर एक चला गया तो कंसिस्टेंट है। दो इक्वेशंस कब इनकंसिस्टेंट होगा? अगर दोनों का ग्राफ्स जो है वो पैरेलल है तो। सो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट वर्ड्स समझ में आया? अगेन कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट आर अगेन इंग्लिश वर्ड्स। लेट अस आल्सो ट्राई टू सी व्हाई दीज टर्म्स आर appropriate for these cases। एक बार जब एग्जाम्पल्स करते हैं हम, लेट अस सी व्हाई दिस टर्म्स आर अप्रोप्रिएट आल्सो। अभी के लिए आप याद रख लीजिए, अगर सिंगल सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो भी इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अगर नो सॉल्यूशन है तो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी गेट? When you have two equations, ग्राफ ड्रॉ करके तो समझ में आएगा, समझ में आ रहा है? बट बिफोर ड्रॉइंग द ग्राफ, इज देयर अ वे टू चेक वेदर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और कोइंसिडेंट? देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू चेक वेदर two given linear equations are intersecting, parallel और overlapping। हमको इक्वेशंस देख के कैसा पता चलेगा? इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, हमको कैसा पता चलेगा? ओके, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो हम क्या करेंगे, एक थ्योरी जो भी है क्या चेक करना है वो हमें बोल देते हैं, इसके बाद एग्जांपल्स पे हम जाएंगे। सो फर्स्ट इज, if you have a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. If you have two linear equations, अगर दो linear equations है तो आपके पास, you have to check whether they are in the first case or second case or third case. So checking क्या है देखिए, फर्स्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, a1 by a2 is not equal to b1 by b2. This by this, x coefficient by x coefficient is not equal to y coefficient by y coefficient है तो if a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then it comes under intersecting case or unique solution case. समझ में आ रहा है? सो जस्ट एक्स कोएफिशिएंट बाय एक्स कोएफिशिएंट कर लीजिए, वाई कोएफिशिएंट बाय वाई कोएफिशिएंट कर लीजिए, दोनों अलग अलग नंबर्स आ रहे तो देन दे कम अंडर इंटरसेक्टिंग केस। सेकंड में अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 आ गया, इसका मतलब है इंटरसेक्टिंग नहीं है। इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, इसके बाद आप c1 by c2 पे भी जाना है। If a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, ये गेस कर सकते हैं ये कौन सा केस है? दिस इज ए केस ऑफ आइडेंटिकल लीनियर इक्वेशंस। अगर लीनियर इक्वेशन सेम है तो उसका ग्राफ भी सेम हो जाएगा, इसका मतलब वो ओवरलैपिंग केस में चला जाएगा। इस इंप्लाइज ओवरलैपिंग केस और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस केस। अगर दोनों इक्वेशंस a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 है तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस केस में चला जाएगा। अब a1 by a2 is equal to b1 by b2 हो गया, ये दोनों नंबर्स तो सेम हैं, बट c1 by c2 कुछ और नंबर आ रहे, these two are not equal to c1 by c2, then it goes into parallel case or no solutions case. So parallel case और no solutions case में
a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होगा, बट c1/c2 जो नंबर है वो कुछ और आएगा। समझ रहे? सो दीज आर दी 3 checks by which you can understand which case the straight lines are or linear equations are. अब कौन कौन सा केसेस कंसिस्टेंट में आएगा? जो पहला दो है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो कंसिस्टेंट। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हुआ तो इज इक्वल टू c1/c2 भी होना चाहिए, तब भी कंसिस्टेंट। सो दीज टू केसेस कम अंडर consistent cases. This case comes under inconsistent case. समझ में आ रहा है? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम ये दोनों को कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट केसेस को समझने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एन एग्जाम्पल. Let us take x plus y is equal to 4 and 2x plus 3y is equal to 10. ये दोनों का ग्राफ्स हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं. These came under intersecting case, right? अब how do I check whether they are in intersecting case or not? So first हम देखिए, एक के नीचे एक लिख लीजिए. x plus y minus 4 is equal to 0, 2x plus 3y minus 10 is equal to 0. फर्स्ट इक्वेशन में x कोएफिशिएंट 1, y कोएफिशिएंट 1, कांस्टेंट इज -4. सेकंड इक्वेशन में x कोएफिशिएंट इज 2, y कोएफिशिएंट इज 3, कांस्टेंट इज -10. सो फर्स्ट a1/a2, b1/b2 ये दोनों फाइंड करेंगे. a1/a2 इज 1/2. देखिए a1 1 है, a2 2 है. b1/b2 1/3. Obviously 1/2 is not same as 1/3. इसका मतलब a1/a2 is not equal to b1/b2 आया. इसका मतलब है intersecting lines. intersecting lines. समझ रहे? और यूनिक सॉल्यूशन हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. 2, 2 आया, यूनिक सॉल्यूशन. सो यू कैन सी दैट a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. समझ में आ रहा है? सो इंटरसेक्टिंग लाइंस दे हैव ए यूनिक सॉल्यूशन. क्लियर? एंड द यूनिक सॉल्यूशन हैज टर्न्ड आउट टू बी 2, 2. अब ध्यान दे दीजिए, ये जो टेस्ट हम कर रहे हैं, this test only is a test of consistency. इस टेस्ट से आपको सॉल्यूशन नहीं आएगा, सॉल्यूशन आपको फाइंड करना पड़ेगा. सो दिस टेस्ट ओनली टेल्स यू वेदर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इन यूनिक सॉल्यूशन केस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन केसेस और नो सॉल्यूशन केस. सो ये दोनों सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट है क्या? नहीं. These two solutions are consistent. समझ में आ रहे? दिस इज द फर्स्ट वन. अब ध्यान दे दीजिए, दूसरा पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई इक्वल टू 4, दूसरा है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 मान लीजिए. सो लेट अस टेक दीज टू इक्वेशंस. अब ध्यान से देख लीजिए, x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इज वन इक्वेशन. 2x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज द सेकेंड इक्वेशन. ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है. क्लियर? अब देखिए 1/2 a1/a2, b1/b2 भी 1/2 है. c1/c2 इज -4/-8. -4/-8 क्या होगा? ये भी 1/2 होगा. सो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. सो ये कौन सा केस में जाएगा? ओवरलैपिंग. हम ऑलरेडी थ्योरी में देख चुके हैं. इफ a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, then both the linear equations are same. Both the linear equations are same. So obviously overlapping lines आएगा. That means infinite solutions, and that means again consistent.
समझ में रहे? सो ये भी एक कंसिस्टेंट केस में आएगा. एंड तीसरा जो है x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 मान लीजिए. सो इसमें a1 by a2 is 1 by 3, b1 by b2 is also equal to 1 by 3. सो ये दोनों तो सेम आ रहे. बट c1 by c2 कितना है? माइनस 4 by माइनस 8 विच इज 1 by 2. सो a1 by a2 is equal to b1 by b2 हुआ, but which is not equal to c1 by c2. That means these two lines are parallel to each other. That means you have no solution. That means these are inconsistent. So these equations are inconsistent. समझ में आ रहा है कि नहीं? सो ऐसा करके आप ये कंसिस्टेंसी का टेस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट्स. एंड हम ये भी देखेंगे ये टर्म जो है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, व्हाई आर दिस टर्म्स एप्ट इन दिस सिचुएशन. हम ऑलरेडी देखे हैं एवरी लीनियर इक्वेशन इन सम वे रिप्रेजेंट सम फिजिकल इंफॉर्मेशन. सो मान लीजिए आपको मैं बोल रहा हूं मेरे पास कुछ पैसा है, मेरा फ्रेंड के पास कुछ पैसा है. ये दोनों को मैं बोल रहा हूं द सम ऑफ दीज टू, मेरे पास जो पैसा है, मेरा फ्रेंड के पास जो पैसा है, ये दोनों को ऐड करके 4 आ रहे हैं. ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2. इसके पास जो पैसा है उसको x बोलिए, इसके पास जो पैसा है उसको y बोलिए. मैं बोल रहा हूं ये दोनों को ऐड करके आपको 4 आ रहे हैं. इसके बाद नेक्स्ट बोल रहा हूं अब इस मनी जो है इसको 3 टाइम्स कर लीजिए, इस मनी को 3 टाइम्स कर लीजिए. ये दोनों को ऐड करके 8 आ रहे हैं. So can both of these be simultaneously true? Am I consistent with my words? एक दिन बोल रहा हूं ये दोनों को ऐड करके 4 आ रहे हैं, अगले दिन बोल रहा हूं ये दोनों के पास जो पैसा है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 8 आ रहे हैं. समथिंग इज रॉन्ग विथ व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि आपको पता है ये दोनों का सम अगर 4 है तो ये दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसके बाद सम किया तो 12 आना चाहिए ना. बट मैं बोल रहा हूं 8 आ रहा है. You can see that this guy is problematic. This guy is not standing on his word. आज बोल रहे कि दोनों का सम 4 है, अगले दिन बोल रहे दोनों का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ रहे हैं. 12 आना चाहिए ना. समझ में आ रहे? So the guy, these two informations are inconsistent with each other. जो पहला linear equation बोल रहे हैं, second linear equation is contradicting the information in the first equation. इसी को हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं. इंग्लिश में इफ आई से डोंट बी इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब है जो आज बोलेगा वॉट एवर यू से टुडे यू हैव टू से सेम थिंग द नेक्स्ट डे ऑल्सो, सेम थिंग द नेक्स्ट डे ऑल्सो. आज एक बात कर रहे हैं, कल कुछ और कर रहे हैं, परसों कुछ और कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर नॉट कंसिस्टेंट. समझ में आ रहा है? सो दीज टू इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट विथ ईच अदर, क्योंकि फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज सेइंग समथिंग, the other guy is saying, the other day you're saying something else. These two, look at these two. मैं बोल रहा हूं दोनों को ऐड किया तो 4 आएगा, दोनों को डबल करके ऐड किया तो 8 आएगा. आई एम सेइंग द सेम थिंग अगेन, है ना. दोनों को ऐड किया तो अगर 4 आया तो दोनों को डबल करके ऐड किया तो 8 ही आएगा. दैट मीन्स आई एम कंसिस्टेंट, आई एम नॉट चेंजिंग माई वर्ड. सो दिस इज ऑल्सो ए कंसिस्टेंट इक्वेशन. बट द डिफरेंस इज मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दिया. फर्स्ट इक्वेशन में जो इंफॉर्मेशन है सेकंड इक्वेशन में भी एग्जैक्टली वो ही इंफॉर्मेशन. सो आई डिड नॉट गिव यू एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. सो इफेक्टिवली यू हैव ओनली वन लीनियर इक्वेशन, सो यू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. एंड हियर x plus y equal to 4, 2x plus 3y is equal to 10. So this is also a consistent case. मैं बोलता हूं x plus y अगर 4 है, अगले दिन बोलता हूं 2x plus 3y is equal to 10 है. There is a situation where both these informations can be right. अगर मेरे पास 2 रुपया है, बगल वाले के पास भी 2 रुपया है,
The first guy has 2 rupees, the second guy also has 2 rupees. So this information is also true for these two, this situation. This information is also true for this situation. That means there is a case, there is a solution for which these two informations are consistent. So first equation, ये वाला केस भी consistent में आएगा, infinite solutions वाला केस भी consistent में आएगा, but ये वाला केस जो है वो inconsistent में आएगा. So consistency and inconsistency समझ में आया? ग्राफ से सॉल्यूशन कैसे निकालना है समझ में आया? तो दोनों ग्राफ्स ड्रॉ करना है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सॉल्यूशन है. अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो यू जस्ट नीड टू राइट नो सॉल्यूशन. दोनों ओवरलैप हो रहे हैं तो यू हैव टू राइट द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. एंड अलजेब्रिकली कैसे टेस्ट कर सकते हैं? टेकिंग द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट. अब हम इस कॉन्सेप्ट का अप्लाई करके let us see how questions can be done. So this will be interesting. Questions नया concept है, इसके ऊपर questions कैसे आएगा.